Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for plus 2 Arts Political Science, and the name of the chapter is International Organization. In our previous lectures, we have discussed about the different organs of international organization such as Security Council, International Monetary Fund, World Trade Organization, and so other. And if we discuss India and the UN reforms, it was noticed that India itself जो है wishes to be a permanent member in a restructured United Nation. अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो जो इंडिया है उसका 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. फर्स्ट इज द रशिया एंड अदर इज, if we talk about population, then India is the second most populous country in the world. About 1/5 of the world population comprising in India. Moreover, अगर हम बात करें, India is the world's largest democracy. और इंडिया ने has participated in all the initiatives of United Nations. अगर हम बात करें role of United Nations, that is in peacekeeping effort. These efforts are long and substantial one. And another fact is that the countries की जो इकोनॉमिक इमरजेंस है वर्ल्ड स्टेज में, वो जस्टिफाई करती है इंडियाज क्लेम्स टू परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल. Even India also made regular financial contribution to UN and never flattered on the payments. India know that and also aware that तो जो परमानेंट मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस प्रोवाइड कर रही है. इवन जो ग्रेटर स्टेटस is an advantage to a country in the conduct of its foreign policy. The reputation for being powerful makes you more influential. India की जो wish है to be a permanent veto-wielding member of United Nations. Some countries जो हैं क्वेश्चन कर रही हैं इट्स इंक्लूजन. नेबरिंग पाकिस्तान विद विच इंडिया की जो हमेशा ही ट्रबल रिलेशन रहे हैं. इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री दैट इज़ reluctant to see India become a permanent veto member for which organization, that is Security Council. Some country जो हैं concerned about India's nuclear weapons capabilities. कुछ कंट्री ये सोचती हैं कि जो इंडिया की डिफ़िकल्टीज या कन्फ्लिक्ट्स हैं विद द पाकिस्तान मेक इंडिया इनफेक्टिव एज अ परमानेंट मेंबर. लेकिन कुछ फील करते हैं इंडिया इज़ इंक्लूडेड, उसको इंक्लूड करना चाहिए. Then other emerging powers will have to be accommodated, जैसे कि ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, even South Africa, whom they oppose. There are those who feel that Africa and South America जो हैं must be represented in any expansion of permanent membership. But those are the only continents not to have representation in present structure. अगर इसको हम कंसल्ट करें
it may not be very easy for India or anyone to become a permanent member of United Nations in near future. United Nations is a unipolar world. अगर हम बात करें अबाउट द रिफॉर्म एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये हो की जाती है कि कुछ कंट्रीज जो हैं चेंजेस would help the United Nations cope better with the unipolar world, जिसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं मोस्ट पावरफुल कंट्री विदाउट एनी सीरियस राइवल्स। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहे हैं, क्या यूएन जो है बैलेंस एज अ सर्व करेगा बैलेंस अगेंस्ट यूएस डोमिनेंस? कैन इट हेल्प मेंटेन ए डायलॉग बिटवीन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड यूएस एंड प्रिवेंट अमेरिका फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर ही वांट्स? मींस जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या, अब क्वेश्चन डिफरेंट तरह के अराइज हो रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट की सुपरमेसी है इसको ख़त्म करके यूनाइटेड नेशन जो है क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है? यूएस पावर जो है कैन नॉट बी इजीली चेक्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, disappearance of Soviet Union after the Cold War, that is disintegration of Soviet Union। जो यूएस है सिर्फ वही सुपर पावर के एज खड़ा हुआ है, जो मिलिट्री इकोनॉमिक पावर है इसको अलाउ कर दिया गया है और कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंटर नहीं हो सकती। सेकेंडली, विद इन द यूएन जो इन्फ्लुएंस है यूएस का वो कंसिडरेबल है। सिर्फ यही एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन को। यूएस की जो फाइनेंशियल पावर है उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता। यही फैक्ट है कि यूएन जो है फिजिकली लोकेटेड विद इन द यूएस टेरिटरीज। जो गिव्स द वाशिंगटन एडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस। यूएस के पास बहुत सारे नेशनल्स हैं इन यूनाइटेड नेशन ब्यूरोक्रेसी। इन एडिशन जो वीटो पावर है यूएस की कैन स्टॉप एनी मूव्स दैट इट फाइंड अनोइंग और डैमेजिंग टू इट्स इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड अलाइज, क्योंकि यही एक सबसे पावरफुल सुपरमेसी है। ये नहीं चाहता कि उसके फ्रेंड्स अलाइज की पावर को कोई रोक सके। जो पावर है यूएस की और इसकी जो वीटो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो ये इंश्योर करती है कि वाशिंगटन जो है कंसिडरेबल डिग्री ऑफ से इन द चॉइस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो यूएस है कैन एंड डज यूज दिस पावर, इसलिए टू स्प्लिट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रिड्यूस द ऑपोजिशन टू द पॉलिटिक्स। ये टॉपिक आज यहीं पर ख़त्म करेंगे, यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड अदर टॉपिक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।